स्टेशनरी वेव बनाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं उसमें से एक कंडीशन कह रहा है द टू वेव्स आर द सेम एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट तो हैं बट द वेव्स मस्ट बी मूविंग, द वेव्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये प्राइमरी कंडीशन है स्टेशनरी वेव की। सेम टाइप की हैं, दोनों साउंड हैं, सेम वेव लेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम सब कुछ सही है, सिर्फ दे शुड बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये बात नहीं भूलनी। A stationary wave is formed on a string that is stretched between two fixed points A and B. T is equal to 0 पे उसकी ये हालत है जो आपके सामने है. Distance AB is 0.8 meters. The period of the stationary wave is 0.016 seconds. On figure 5.1, sketch a solid line to show the position of the string at these times. इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख लो छोटी सी. I want to show you how a stationary wave oscillates and how many movements does it have in one time period. First of all, just soothe yourself with how does a stationary wave oscillate. So this is how it oscillates. It's not like your regular wave which goes left or right. The stationary wave oscillates up and down, as you can see very, very clearly. And another thing that I want you to note is that if there are two particles which are between two nodes, this is a node and this is a node. If there are two particles or as many particles between nodes, all of them always move in the same direction. For they've just given you the example of two, but if I could have, let's say, a particle over here, a particle over here, a particle over here, a particle over here. As long as the particles are between two nodes, they will both or all of the particles will always be moving in the same direction. Have a look. Both particles are going down. Both particles are going up. Both particles are going down. Both particles are going up. Acha. Now let's talk of the time period. Because this is a wave, it has a frequency, hence it must have a time period. Now please remember that in one time period, a stationary wave moves 4 times in one time period. I'll show you. Let's start from here. So this is my starting point and this is my starting point. ये वाला point यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक movement होगी, फिर यहाँ से ये और नीचे जाएगा, ये दूसरी movement होगी. Then it's going to come back, third movement, and then it's going to go back to this point, fourth movement, and when it reaches the same point from where I started, that is one time period. Now let's have a look. 1. Okay, so थोड़ा सा पीछे करना चाहिए था. Alright, so I'm going to slow it down for you. Playback speed 0.5. Let's do it. This is almost 1. One movement means you're on the x-axis. 2. 3. Again, when you reach the x-axis. And 4. So let's count the movements again. First, second, third, fourth. In one time period, your stationary wave moves 4 times. So remember this, that in one time period, a stationary wave will always move 4 times. So one movement is always 1/4. This is one movement. Second, third, fourth. 4 movements in one time period. So जवानों, अब समझो कि ये वो वाली स्ट्रिंग है जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा था. हमने ये डिसाइड कर लिया कि 4 मूवमेंट्स होती हैं एक टाइम पीरियड में, और टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 0.016 सेकेंड्स. इसलिए मैंने उस वीडियो में बोला कि एक मूवमेंट को लगता है क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड. क्वार्टर ऑफ अ टाइम पीरियड कितना होगा? 0.016 को 4 पे डिवाइड कर दो तो 0.004 सेकेंड आ जाएगा. ये एक मूवमेंट का टाइम है. सो अभी आप जिस पोजीशन में हो, आप समझो कि इसी पोजीशन में आपके सामने, आपके जहन में वो एनिमेशन चल रही है. तो मुझे बताओ कि 0.04 सेकेंड्स पे क्या होगा, एक मूवमेंट के बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग की क्या हालत होगी. द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लैट एंड यू हैव टू लेबल दिस लाइन एज P. और 0.024 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? सो आप क्या करो, आपको पता है कि 4 मूवमेंट्स के बाद 0.016 सेकेंड्स आता है. हर एक मूवमेंट के बाद 0.04 सेकेंड्स होते हैं.
सही है। सो कितनी टोटल मूवमेंट्स हो रही हैं? 0.04004 सेकेंड्स एक मूवमेंट का टाइम है। एक और मूवमेंट का टाइम भी ऐड कर लो, ये भी 0.004 सेकेंड्स है। इन सबका पूरा टाइम ऐड करो तो ये 0.024 सेकेंड्स बन गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 6 मूवमेंट्स हुई हैं जी टोटल। सो आपको पता है कि जब ये आपका स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, मैं आपको अपने हाथों से करके दिखाता हूँ, जब स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा तो 6 मूवमेंट्स होगी। 1 2 3 4 मूवमेंट्स पे तो एक टाइम पीरियड होता है, एंड दैट मेक सेंस। 4 मूवमेंट्स बाद वो वापस उधर ही खड़ा है जहाँ पे वो है। 5 6 मूवमेंट्स के बाद जो टाइम गुजर चुका है वो 0.024 सेकेंड्स है, और 6 मूवमेंट्स के बाद जो इसकी शक्ल होगी वो कुछ ऐसी होगी। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना एम्पलीट्यूड जो है उसको वही रखो, उसको नहीं छेड़ना, और ग्राफ को फिर से बनाएं। बेसिकली यूर ड्राइंग अ रिफ्लेक्शन। सो उसने कहा इस लाइन को क्यू लेबल करो, और जो पहली लाइन थी पी थी। डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग। सो उसने आपको बताया डिस्टेंस ए बी इज 0.8 मीटर्स। अब आपको पता है कि स्टेशनरी वेव है तो ये तमाम पोजिशन ये आपके नोड्स हैं, ऐसे ही है ना। और नोड टू नोड डिस्टेंस क्या होता है? λ/2। सो ये कितने λ/2s हैं? λ/2 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 λ/2। These are 4 λ/2s. So v is equals to f lambda में आपको पता है 4 λ/2 is equals to this distance AP which is 0.8 meters। जहाँ से वेवलेंथ निकाल लो अपनी। वेवलेंथ निकल आएगी आपकी 0.4 meters। So v is equals to f lambda. The frequency you can find out from the time period, because frequency is 1 over time period, so 1 over 0.016 into 0.4, that is your wavelength. The answer that you get for this is 25. So यहाँ पे हम 25 लिख देंगे. So over here you're finding out the ratio using Malice's law. You know that I1 and I0 are related by the equation I1 is equals to I0 into cos square theta या cos theta whole square. So I1 over I0 will be equal to cos of 30 degrees whole square. So cos 30 का square कर लो. Your answer is going to be 0.75. और मैं एक और बात बताता चलूँ कि ये जितने फिल्टर्स आगे लगाएगा आपने एंगल का पिछले वाले से डिफरेंस रख के कॉज वाली इक्वेशन में लगाना है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 फिल्टर्स लगाता है, 2 फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा रहा है. एक फिल्टर 30 पे लगाया, अगला फिल्टर वो कहता है कि मैंने बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल रख दिया, मतलब 90 डिग्री टू द वर्टिकल रख दिया. तो आपने देखना है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है. ये 30 डिग्रीज पे है, ये 90 डिग्रीज पे. डिफरेंस कितना है? 60 डिग्रीज का. सो पीछे वाले के हिसाब से इसका डिफरेंस था 30 का, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया. ये जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल डिफरेंस होता है बिटवीन द पिछली वाली पोजीशन. सो अब पिछली वाली पोजीशन से नई वाली पोजीशन में एंगल डिफरेंस इज 60 का. सो अब वो कहते हैं मुझे I2 ओवर I0 निकाल के दो. सो I2 ओवर I0 पे कितने फिल्टर्स आए? 2 आए हैं ना. तो आप यहाँ लिखेंगे I2 ओवर I0 इज इक्वल्स टू cos थीटा 1 का स्क्वायर इंटू cos थीटा 2 का स्क्वायर. अब cos थीटा 1 का स्क्वायर वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.75. cos थीटा 2 में यहाँ पे आप लिखेंगे cos 60 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है. Your answer is going to be 0.1875, which is going to be 0.19.